We are immediately starting with the award and medal ceremony. We request our dignitaries to kindly join us on the dais. The gold medal goes to Itisha Manglik. We request you students to kindly quickly join us on the dais. I'm calling out all the names together. So please quickly join us on the dais. Gold medal goes to Itisha Manglik. The silver medal jointly shared by Kajal Singh and Rahul Bhaume. Quickly please join us on the dais. And Shreya Shruti receives the bronze medal. Congratulations, students. Please quickly come with the, Can we have a round of applause for all the students? This is followed by the list of special award winners. Gold medal Itisha Manglik, she receives a cash prize of rupees 25,000 along with the certificate and the medal. Kajal Singh and Rahul Bhaumik receives 15,000 each. And Shreya Shruti for the bronze medal receives 10,000. List of special award winners. And Rahul Bhaumik is also receiving the award for outstanding student. So congratulations Rahul, congratulations all students. Arpan Chakrabarti for the Leadership Excellence Award. Please join us on the dais, Arpan. And the Student Excellence Awards goes to Swarn Tiwari and Shubh Sanchaita. Request you all to kindly join us on the dais, please. Swarn and Shubh. Congratulations to all the students. Best wishes for your future. Round of applause for all the students. It is your day. And we are now starting with the awards, special awards for the faculty and staff members. Congratulations to all the students. In the faculty and staff awards, special awards, Dr. Vaishali Agarwal is acknowledged with excellence in academics for implementing technology and transformative learning initiatives. Mr. Ashish Panda, excellence in leadership and outreach for remarkable quality of admissions. And Mr. Asjad Iqbal for excellence in corporate relations and industry engagement for exemplary placements when premier institutions in the country were struggling. Congratulations, team. Congratulations to all the students. Can we have a round of applause for them and our faculty members and staff members, Dr. Vaishali, Mr. Ashish Panda and Mr. Asjad Iqbal. Thank you so much. Can we have a round of applause? Thank you, sir. We now request our eminent chief guest to kindly deliver the convocation address. Over to you, sir. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज गाजियाबाद के 34th कन्वोकेशन की डायस पे उपस्थित इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आदरणीय नरेश अग्रवाल जी, इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर, उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री आदरणीय नितिन अग्रवाल जी, यहाँ आज अतिथि के रूप में उपस्थित
एनबीए के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, एआईसीटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अभय जेरे जी तथा इंस्टीट्यूट के आदरणीय डायरेक्टर, सारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य, फैकल्टी और विद्यार्थी भाई और बहनों, मीडिया के साथीगण, मैं नवरात्र की इस पवित्र अवसर पे आप सबको आपकी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण पड़ाव में पहुंचने के लिए शुभेच्छा देता हूं। आप सबको अभिनंदन। मित्रों, मैनेज करना पड़ेगा, गर्मी बहुत है। यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, those who are passed out today and those who are still studying in this great institution, building an institution, running an institution, creating nation builders is not a mere small thing. I congratulate the management, I congratulate the esteemed faculty for creating this knowledge ecosystem in the National Capital Region of Delhi and in Ghaziabad. Friends, we all are in a very challenging time. Here lies the more responsibility those who have studied diploma in management. मित्रों, आज दुनिया की स्थिति बड़े विचित्र अवस्था में है। भारत नौजवानों की देश है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में युवा वर्ग में ज्यादा लोग हैं। लगभग 35 साल के अंदर 0 to 35, न्यू बॉर्न टू 35, इसमें लगभग half of the population is below 35. Nowhere in the world today this kind of youthfulness is there in the population. This is our advantage. Today India is the #1 populated country among the world, among different countries. और वहां युवाओं की देश है। मित्रों, आज हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 आई थी। स्टीम इंजन और मशीन की दुनिया सामने आई थी, उद्भावन हुई थी। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 आई। इलेक्ट्रिसिटी सामने आई, मास प्रोडक्शन, रेलवे जैसे इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के सामने आया। मनुष्य की जिंदगी आसानी की ओर बढ़ी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 लेट 20th सेंचुरी अभी अभी हमने छोड़ा कुछ दशक पहले, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस, यह सब पढ़ाई जुड़ी, जिंदगी और आसान हुई। तब यह डिबेट चली, जॉब का क्या होगा, खेती का क्या होगा, फूड प्रोडक्शन की क्या होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कहां जाएंगे। मित्रों, ये डिबेट तब चल पड़ी थी। आज हम 21st सेंचुरी में लगभग 2.5 दशक पार कर चुके हैं। 2025 में बीते 25 साल में औद्योगिक क्रांति 4 में हम प्रवेश कर रहे जा रहे हैं और थोड़े दिनों में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 5.0 की ओर बढ़ेंगे। इस 4.0 में स्मार्ट और इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी की सामने आई। फ्यूजन, फिजिकल और डिजिटल दोनों की फ्यूजन शुरू हुई। रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, ML, AR, VR, नैनो टेक्नोलॉजी और अभी अभी AI की चर्चा हो रही है। यह मशीन को मनुष्य से ज्यादा स्मार्ट बना रही है। जब मशीन इतने स्मार्ट हो गए हैं तो मैनेजमेंट स्टडी की काम क्या होगा, ये एक स्वाभाविक प्रश्न आती है।
हमें लगता है कि हमारी काम अब शुरू होती है. You all are entering to a situation never before this kind of challenging situations were there. This debate is going on whether job will be taken away by AI, job will be remain, or new jobs will be created. This basic challenge is there in front of you. I hope the new generation with more intelligent machine, because machine are intelligent, human being is intelligent. Finally, machine has been developed by human being. Nowhere I have strong belief. At any given point of time, human being, HI will overpower AI. Human is human, human is natural, AI is artificial. It may be compute many a big data, but विवेक नहीं रहेगा, विचार नहीं रहेगा, सही गलत की विवेक मनुष्य को ही करना पड़ेगा. यही विषय आपको मैनेज करना पड़ेगा. मित्रों, अगर मैं आज की सिचुएशंस के साथ उसको जोड़ूं, हमें आने वाले 22 साल में विकसित भारत यानी डेवलप्ड इकोनॉमी को बढ़ना है. डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होगा? मनुष्य को और सुख सुविधा, शांति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होगी. हम अपना ही चलेंगे, केवल अपना ही नहीं, विश्व की अंडर प्रिविलेज लोगों की दायित्व भारत जैसे देशों के प्रति है. इसलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना किया है. एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली, एंटायर ह्यूमैनिटी इज आवर फैमिली, वी आर पार्ट ऑफ दैट. दिस इज आवर बिलीफ. मित्रों, इसमें विकसित भारत की लक्ष्य तब पूरा होगी अगर हम स्वाभिमानी होंगे, हम स्वावलंबी होंगे, हम अपनी ही अर्थनीति अपने ही हाथों में बनाएंगे. मित्रों, अगर हम अपने ही चीजों के प्रति भोकाल होंगे, हमारी भोकाल फॉर लोकल, महात्मा गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में चरखा को सिंबल बनाई, नमक को सिंबल बनाई. यह कोई साधारण चीज नहीं था. तब तो मैनचेस्टर से सस्ते में कपड़ा आने लगे थे. लंदन के बाजार से हमारे नमक भी पैक होके यहां आते थे, माचिस की डिब्बी भी पैक होके आते थे, चीनी भी आते थे. लेकिन महात्मा गांधी जी ने देश के नागरिकों को आह्वान दिया स्वाभिमानी बनने के लिए. 1921 में नॉन कोऑपरेशन शुरू हुई. 1942 आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोगों ने, क्विट इंडिया मूवमेंट में हम लोग आंदोलन को पहुंचाए. मित्रों, आज 100 साल के बाद लगभग हमारे सामने अगर भारत को विकसित करना है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 5.0 में हमारी वर्चस्व, हमारी डोमिनेंस जारी रखना है, तब हमें स्वाभिमानी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, हमारी अपनी चीजों के प्रति भोकाल होना है, हम स्वदेशी को अपनाना है. खदी एक कपड़ा नहीं था, खदी भारत की अर्थनीति की मेरुदंड था, रीढ़ की हड्डी थी. आज हमें अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा. आज के समय से हमारी खदी तो है ही, शायद आज हमारा चंद्रयान, आज हमारी न्यू स्वदेशी है. हमारी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत हमारी न्यू स्वदेशी है. यह विषय को समाज के सामने लेने की दायित्व IMS की है. मित्रों, मैं 100 साल पहले की एक स्थिति बता के आपको मेरे वाणी को विराम दूंगा. 100 साल पहले उन दिनों की नेतृत्व हमको आह्वान दिया था देश के लिए मर मिटने के लिए, देश के लिए बलिदान देने के लिए, क्योंकि देश को स्वराज्य चाहिए था. स्वराज्य के लिए हम लोगों ने उस समय में, हमारे नेतृत्व हमको आह्वान किया था बलिदान के लिए. आज बलिदान की आवश्यकता नहीं है, आज जीने की आवश्यकता है. जीवन देने की नहीं, जीवन को जीने के लिए आवश्यकता है. लेकिन स्वराज्य तब की लड़ाई था, अब समृद्धि की लड़ाई होगी. हमें भारत को समृद्ध बनाना है, केवल भारत को नहीं. भारत समृद्ध होगा तो दुनिया समृद्ध होगी. कोरोना में हमें वैक्सीन उत्पादन करने का अवसर मिला. हमने तारीफ नहीं लगाई,
हमने रेट नहीं बढ़ाई, हमने तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मैत्री में मुफ्त में औषध और वैक्सीन पहुंचाए, डॉक्टर और नर्स पहुंचाए। मित्रों, अगर आईएमएस जैसे इंस्टीट्यूट भारत में नहीं खुलते, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, भारत की अर्थनीति केवल नहीं, दुनिया की फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आज इस स्थिति में नहीं पहुंचता। अभी अभी हमने दुबई में भारत की महत्वपूर्ण शिक्षा अनुष्ठान आईआईएम अहमदाबाद के कैंपस खोल के आए हैं। ये भारत के मैनेजमेंट फैकल्टी के, मैनेजमेंट स्टूडेंट के, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की उपलब्धि है। आज हमारी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन दुनिया में आज ग्रहण किया जा रहा है। मित्रों, आज आईएमएस की कैंपस जब आने वाले दिनों में खुद को तैयार करेगा, केवल बच्चों की जिंदगी में अच्छे पैकेज आए यह पर्याप्त नहीं है। केवल पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी और खुशहाली हो यह पर्याप्त नहीं है। हमें, आप तो चाणक्य हो, हमें चंद्रगुप्त मौर्य बनानी है। दुनिया को दिग्विजय करने के लिए, दुनिया की मानवता को, अर्थनीति को, समाज नीति को, राजनीति को नेतृत्व करने के लिए मैं इसी शुभेच्छा के साथ आईएमएस का उत्तरोत्तर उन्नति कामना करता हूं। आने वाले दिनों में ये एक पूर्णांग यूनिवर्सिटी बने। भारत सरकार आपके साथ सहयोगी रहेगा। भारत में जीईआर को बढ़ाना है, आप बढ़ोगे तो भारत की नौजवान बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे को आपने यहां निमंत्रित किया। आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा, बधाई। आप सब राष्ट्र निर्माता बनो, नेशन बिल्डर बनो। बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद।